الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی کفارۃ الاحرام، احرام کے کفارے کے بارے میں، اور اس کی دو فصلیں تھیں۔ باب خامس میں فصل اول ہم نے پڑھ لی کہ جو شکار کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے، اور یہ دوسری فصل ہے باقی وہ چیزیں جو حرام ہیں۔ شکار کے علاوہ کیا کیا چیزیں محرم پر حرام ہیں وہ اس فصل میں پڑھیں گے، فصل ثانی میں۔ الفصل الثانی فی بقیت المحظورات، دوسری فصل باقی حرام چیزوں کے بارے میں۔ محظور یعنی ممنوع، جو چیز منع ہے، حرام ہے۔ اب بقیہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی شکار کے علاوہ۔ فیہ مسائل، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور ٹوٹل کتنے مسئلے ہیں جانتے ہیں؟ 12۔ کتنے مسئلے ہیں؟ 12۔ الاولی، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ من جامع امرأتہ، من یعنی کون، جو، یہاں ویسے کون ہوتا ہے لیکن یہ من جامع، جس نے جمع کیا، امرأتہ، اپنی زوجہ سے، ٹھیک ہے، قبل احد الموقفین، دونوں وقوف میں کسی ایک سے پہلے۔ احد الموقفین یعنی دو موقف ہیں کہ نہیں، ایک وقوف فی العرفات اور ایک وقوف فی المشعر، ان دونوں سے پہلے۔ احرام تو آپ کو پہلے باندھ لینا ہے کہ من جامع، جس نے جمع کیا، ٹھیک ہے، امرأتہ یعنی اپنی عورت سے، یعنی اپنی زوجہ سے، قبل احد الموقفین، دونوں موقف سے، دونوں موقف میں کسی ایک سے پہلے۔ احد الموقفین یعنی کسی ایک سے پہلے۔ قبلا او دبورا، قبلا یعنی آگے کی شرمگاہ، او یعنی یا دبورا پیچھے کی شرمگاہ، کہ اگر کوئی دونوں موقف سے پہلے، کسی ایک سے بھی پہلے، مثلا آپ نے عرفات سے پہلے نہیں کیا بلکہ کیا کیا، مشعر میں جانے سے پہلے جمع کیا، صحیح ہے، یا آپ نے میدان عرفات سے پہلے کیا، کہ من جامع امرأتہ، جس نے اپنی زوجہ سے جمع کیا، قبل احد الموقفین، دونوں موقف میں کسی ایک سے پہلے، قبولاً او دبوراً، آگے کی شرمگاہ میں یا پیچھے کی شرمگاہ میں، عمدن یعنی جانتے ہوئے، عالماً، ٹھیک ہے، عامدن ارادے کے ساتھ، عمد کے ساتھ، عالماً بالتحریم، حرمت کو جانتے ہوئے۔ آپ کو معلوم تھا کہ جمع کرنا حالت حرام میں کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن پھر بھی آپ نے جان بوجھ کر حرام کو جانتے ہوئے بھی آپ نے جمع کیا، بطل حجہ، تو اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ 4 لاکھ لگا کے گئے تھے، باطل۔ وعلیہ اتمامہ، اور اس پر اس کا مکمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس حج کو جو اس کا باطل ہوا ہے اس کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ والقضاء من قابل، ٹھیک ہے، اور اس کی قضا کرے گا قابل یعنی آنے والے سال میں۔ آپ نے میقات سے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد آپ پہ تمام چیزیں کیا ہو گئیں؟ حرام۔ ابھی تک ہم نے شکار کے بارے میں کہا تھا، شکار کے علاوہ اپنی زوجہ سے جمع بھی کیا ہوگا؟ حرام۔ کہہ رہے ہیں اگر کوئی دونوں موقف میں کسی ایک موقف سے پہلے
चाहे वो जिमा कुबल में हो या दुबर में। अगर आप आमदन अंजाम दे रहे हो, एक है कि किसी ने आपको मजबूर किया तो उसका हुक्म आएगा आगे, लेकिन यहां है आमदन, ठीक है, इख्तियार है और आमिद है, आप जानबूझ के, आलिमन बित्तहरीम, हुर्मत का आपको इल्म भी है। आप जानते हैं कि हिराम में बीवी के पास जाना क्या है, हराम है। बतला हज्जुहु, तो उसका हज क्या होगा, बातिल हो। व अलैहि, और उस पर वाजिब है, इत्मामुहु, यानी उसको पूरा करना, वल क़ज़ाउ, और उसकी क़ज़ा करना। अलैहि इत्मामुहु से मुराद समझ में आ रहा है, यानी जो हज बातिल हुआ उसको पूरा करेगा, सारे अरकान अंजाम देगा, और फिर उसकी क्या करेगा, क़ज़ा भी करेगा। समझ में आया ना, इत्माम से मुराद समझ में आ रहा है। व अलैहि इत्मामुहु, यानी जो हज बातिल हुआ है उस वाला हज, वो हज पूरा करना उस पर क्या है, वाजिब है। वल क़ज़ाउ मिन क़ाबिलिन, और उसकी क़ज़ा करना आने वाले साल में। और कफ़ारा क्या वाजिब होगा, व बुदनतुन, और क्या बात होगा, बुदना, यानी एक ऊंट, एक ऊंट मौलाना जो 5 साल पूरे कर चुका हो। सिवाउन कानल हज फर्दन औ नफला, चाहे वो हज आप पर क्या हो, वाजिब हो या मुस्तहब। सिवाउन कानल हज्जो, चाहे वो हज हो फर्दन औ नफलन, वाजिब या मुस्तहब। नहीं समझ में आया बेटा जी? मेहदी हुसैन, यानी जो हज करने आप गए हैं वो हज मुस्तहब था, वाजिब नहीं था, आप पे वाजिब नहीं है। एक मरतबा हज आप कर चुके हैं जिंदगी में, दूसरी मरतबा हज करने जा रहे हैं तो हज वाजिब होगा कि मुस्तहब होगा? आपको अल्लाह ने पैसा दिया था, मुस्तहब है, सही है। अब मुस्तहब है, आप हज करने के लिए गए, लेकिन उसमें आपने क्या किया, बीवी से अपने, पता चला आपने सऊदी में भी एक शादी कर रखी थी, एहराम बांध के आप सीधे वहां पहुंच गए। एहराम बंधा हुआ है, दोनों मौक़िफ़ में किसी एक से पहले आपने जमा किया, तो वह हज आपका क्या हो जाएगा, बातिल। लेकिन हज के उस साल के अरकान सारे आप अंजाम देंगे, फिर उसकी क़ज़ा बजा लाएंगे, और यानी वाजिब है तो क़ज़ा करेगा, नहीं है तो क़ज़ा नहीं करेगा अगर मुस्तहब था। लेकिन बुदना उस पर वाजिब है कफ़ारे के तौर पर, यानी 5 साल का ऊंट कफ़ारे के तौर पर वो देगा। जिस पर वाजिब होगा हज, वो क़ज़ा भी करेगा और बुदना भी देगा, है ना। और हराम प्लस हराम हो जाए तो दोनों, हराम प्लस हराम हो जाए तो कैसे मसला, यानी सऊदी गया था, दूसरे की भी थी, उसके साथ जमा कर दिया, आएगा, सब आएगा इंशाअल्लाह। व अलैहा, अब ये देखिए, ये तो शौहर पे बात आ रही है, अब औरत का क्या है, व अलैहा मिस्लु ज़ालिका, उसी के जैसा, यानी उसका भी हज क्या हो जाएगा, बातिल, उसको भी क्या देना होगा, बुदना। समझ में आ रहा चला? इन ताबअतहु, अगर उसने क्या की हो, इताअत की हो, यानी जिमा के जरिए से अपने शौहर से जिमा करने पर क्या हो, राजी हो, और जिमा से मना न किया हो, यानी शौहर को मना करे कि नहीं नहीं हम एहराम में हैं, हज के लिए आए हैं, जायज नहीं है, तो अगर मना किया है तब उस पे नहीं होगा। लेकिन अगर उसने मना नहीं किया, वो भी शौहर के साथ राजी है, तो क्या होगा, उस पर भी वही तमाम कफारा वाजिब होगा। और क्या होगा मौलाना, वअलैहिमल इफ्तिराक, और उन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। इफ्तिराक से मतलब यहां मालूम क्या है, इफ्तिराक से मतलब है कि वह हुआ अल्ला यनफरिदा बिल इज्तिमा, कि कभी भी दोनों इकट्ठा तनहा जमा न हो। समझ में आई बात? वअलैहिमल इफ्तिराक, उनका जुदा होना उन पर क्या हो जाएगा, लाजिम,
कैसा जुदा होना? क्या दोनों की मुलाकात भी ना हो? कहा नहीं, वहुआ ला यनफरिदा, कि वो दोनों तन्हा ना हो, बिलिज्तिमा, एक साथ, कि सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी एक जगह पर ना हो, बल्कि अगर मजमे में है तो कोई हरज नहीं है। समझ में आया? तन्हाई में दोनों, हाँ, और ये कब? उस हज में नहीं, इन हज्जा फिल काबिल, अगर वो हज करेंगे आने वाले साल में। मिन मौज़िल मासिया, गुनाह की जगह पर, इन इला अन यफरिगा फिल मनासिक मिनल मनासिक, यहां तक कि दोनों फारिग हो जाए, किससे? हज के अरकान से। यानी दोनों तन्हा एक जगह नहीं होंगे जब तक कि आने वाले साल में पूरे उनके हज के अरकान मुकम्मल न हो जाएं। यानी तवाफुन निसा करके 2 रकत नमाज न पढ़ लें, तभी जाके ज़ौजा क्या होगी? हलाल होगी। इतना क्लियर है बेटा आपको सकीना? हाँ, आखिरी लाइन एक बार और बता दीजिए। मिन मौज़िल मासिया, गुनाह की, मासियत कहते हैं गुनाह, यानी उनको, इसको हटा दीजिए। ये वहुआ ला यनफरिदा बिल इज्तिमा, ये एक्सप्लेनेशन है। असल सेंटेंस इस तरह से है, वअलैहिमल इफ्तिराकु इन हज्जा फिल काबिली मिन मौज़िल मासियति इला अन यफरिगा मिनल मनासिक, कि उनको जुदा रहना है अगर हज करें आने वाले साल में, ताकि वो मासियत की जगह से क्या रहें? बचे रहें, यहां तक के वो अरकाने मनासिक यानी अरकाने हज, यहां तक के अरकाने हज से फारिग हो जाए। जब अरकाने हज से फारिग हो जाएंगे तो ज़ौजा और शौहर एक दूसरे पर हलाल होंगे। जब तवाफुन निसा कर लें तो फिर अगर वो एक जगह तन्हा जमा हो रहे हैं तो कोई हरज नहीं है। क्लियर है? जी आगा। अब देखें, अब दूसरा मसला आ रहा है, एक नया मसला। वलौ अकरहा, हाँ मौलाना, अगर मर्द ने जबरदस्ती की हो औरत से, ठीक है उसकी बीवी, वलौ अकरहा, लेकिन बीवी राजी नहीं है, शौहर ने क्या किया? जबर किया। वलौ अकरहा, सही है, जिमा पर उसको मजबूर किया। सहा हज्जुहा, तो ज़ौजा का हज क्या होगा? सही होगा। शौहर का क्या हो जाएगा? बातिल। वयहमिलु अनहल कफ़ारतो, और उसका कफ़ारा भी कौन देगा? औरत का शौहर, क्योंकि उसने उसको मजबूर किया है। सुभान अल्लाह, देखना शरीयत कितनी इंसाफ पसंद है। कि अगर बीवी राजी है तो क्या होगा? वो अपना कफारा खुद देगी। अगर वो राजी नहीं है, वो मना कर रही है, शौहर ने उसको मजबूर किया है, तो बीवी का हज सही रहेगा और उसका, बीवी का भी कफारा शौहर देगा, और शौहर का हज क्या होगा? बातिल होगा। वलौ कान बअदल मौक़िफ़ैन, हाँ दोनों ने जमा किया, लेकिन जमा कब किया? वक़ूफ़ फिल अरफ़ात और वक़ूफ़ फिल मशअर के बाद। सह्हल हज्जु, तो हज क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
ववजबतिल बुदनतो, और बुदना यानी 5 साल का ऊँट कफारे के तौर पर क्या होगा, वाजिब अला कुल्ले वाहिदिन मिनहुमा, उन दोनों पर, यानी एक बुदना इस पर एक बुदना उस पर। यानी हज के लिए जाना है तो आपको भूल जाना है कि मेरी बीवी है। ठीक है, अब आगे भी मसला आ रहा है इसी में मौलाना, अभी तो इसमें काफी है, भी कई मसले हैं जो आप पूछ रहे थे ना, सब हैं, सब है, निगाह करने का मसला आ रहा है माशाअल्लाह, जो इंशाअल्लाह फिर हम कल पढ़ा जाएगा। तो फिर से देख लीजिए तेजी के साथ, मन जामा इम्राअतहु, जो जिमा करे अपनी औरत से, क़ब्ल अहदिल मौक़िफ़ैन, दोनों मौक़िफ़ से पहले, दोनों मौक़िफ़ में किसी एक मौक़िफ़ से पहले, क़ुबुलन आगे की शर्मगाह में, औ दुबरन या पीछे की शर्मगाह में, आमिदन जानबूझकर, आलिमन बित्तहरीम हरमत को जानते हुए, बतरा हज्जुहु तो उसका हज बातिल है, व अलैहि इत्मामुहु और उस पर वाजिब है कि उस हज को पूरा करे, वल क़ज़ाउ मिन क़ाबिलिन और आने वाले साल में उसकी क़ज़ा करे, व बुदनतुन और उस पर वाजिब है एक बुदना कफ़ारे के तौर पर, यानी एक ऐसा ऊँट, एक ऐसी ऊँटनी जो 5 साल पूरे कर चुकी हो। अब ये दोनों चीजें कब वाजिब होंगी जो अहकाम बताए हैं, कह रहे सिवा उनका नल हज फरदन औ नफलन, चाहे हज वाजिब हो या मुस्तहब, दोनों सूरतों में जिमा की सूरत में हज क्या हो जाएगा, बातिल। व अलैहा यानी औरत पर, मिस्लु ज़ालिका यही तमाम चीजें वाजिब होंगी, इन तावअतहु अगर वो जिमा पर राजी हो, व अलैहिमल इफ्तिराक़ु और उन दोनों को अलग रहना होगा। कैसे दोनों को अलग रहना होगा, उससे मुराद क्या है, वह हुआ अल्ला यनफरिदा कि वो दोनों तन्हा न हो, बिल इज्तिमा एक साथ, ठीक है, वो दोनों तन्हाई में खलवत में एक साथ कहीं किसी मौके पर न रहें। इन हज्जा जब वो हज करें, फिल काबिल आने वाले साल में, क्यों न रहे भाई, मिन मौदिअल मासिया ताकि मासियत के मकाम से क्या रहें, दूर रहें, बचे रहें। कब तक, इला अन यफरगा मिनल मनासिक यहाँ तक कि अरकान हज से फारिग हो जाएं। वलौ अकरहा अगर शौहर ने मजबूर किया हो ज़ौजा को, सहा हज्जुहा तो ज़ौजा का हज क्या होगा, सही होगा। वयहमिलु अनहल कफ़ारतो और उस औरत के बदले, ज़ौजा के बदले उसका शौहर कफ़ारा अदा करेगा। वलौ काना बअदल मौक़िफ़ैन अगर वक़ूफ़ फिल अरफ़ात और वक़ूफ़ फिल मशअर के बाद जिमा किया है, सह्हल हज तो हज सही है, व वजबतिल बुदना लेकिन बुदना उन पर वाजिब होगा, अला कुल्ले वाहिदिन मिनहुमा उन दोनों में से हर एक पर। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।